اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وابو القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران جناب سیدہ ماتمداران معصومہ کونین، حاضروں بس ٹھہر کر کے مصائب سنیے گا۔ ایک مکمل مجلس مصائب کی آپ سماعت فرما چکے ہیں، مگر یہ بی بی کے مصائب ہیں اور اس بی بی کے مصائب ہیں۔ آج آپ اس رضا خانے میں آئے ہیں تو یہاں پہ اندھیرا ہے، لیکن یہ اس بی بی کے مصائب ہیں جو پہلی ذاکرہ آپ نے بیٹے امام حسین کی تھی، کہ جب یہ خبر سنائی گئی تھی کہ زہرا آپ کو ایک بیٹا عطا کیا جائے گا، تو جو پہلا ماتم امام حسین پہ اس زمین پہ ہوا تھا وہ جناب سیدہ۔ آزاداروں میں ٹھہر کے مصائب پڑھوں گا، دل تو چاہتا تھا میں کچھ فضائل بیان کروں، کیا فضائل آپ کے سامنے بیان کروں کہ آج اس کی شب شہادت ہے۔ وہ سیدہ جو فخر مریم و سارہ ہیں، وہ جناب سیدہ جس کو دو جہاں کا رسول جب آپ کی خدمت میں آتے تھے تو اٹھ کر کے کھڑے ہو کے احترام کیا کرتے تھے۔ یہ کون سیدہ ہیں؟ یہ وہ جناب سیدہ ہے کہ جن کے واقعات اس طرح سے ملتے ہیں کہ چکیاں پیستی تھی، بچوں کے لیے کھانا بناتی تھی، اور چکی کے بارے میں جناب فضہ کا بیان یہ ہوتا تھا کہ بی بی جب چکی پیستی تھی تو کچھ خون جو تھا وہ چکی کے اوپر آ جایا کرتا تھا ہاتھوں کے زخمی ہو جانے سے۔ اور حاضروں یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ملکۃ العرب کی بیٹی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اس بیٹی کی بات ہو رہی ہے کہ جس کی والدہ کی دولت سے اسلام پروان چڑھا تھا۔ عزاداروں میں یہ اسلام کی غربت کے زمانے کے بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب آپ ہی کے شوہر کی تلوار سے خیبر فتح ہوا اور اس کے بعد مسلمانوں کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ مالدار ہوئے۔ مگر ہاں یہ سیدہ کا گھر کہ سیدہ کے بچے بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، اور 3 دن کی بھوک کے بعد آپ کا عالم یہ تھا کہ جو روٹیاں بنائیں کبھی یتیم کو دے دی، کبھی اسیر کو دے دی، کیونکہ بس قرآن کی ایک آیت سامنے رہتی تھی کہ تم یہاں کو نہ دیکھو، تم یہ دیکھو کہ تمہیں وہاں کیا ملنے والا ہے۔ جزاکم ربکم بخیر الجزا۔ ہاں یہ فضائل ذہن میں رہیں تو آپ بے حد گریہ فرمائیں گے عزیزوں۔ ہاں ابھی سلیم ذکر کر رہے تھے، حسنین کے نوحے کا ذکر کر رہے تھے، ارے فریاد کرتے اماں وہ دروازہ جلا دیا گیا۔ عزیزوں وہ کون سا دروازہ ہے جس پہ صبح اللہ کا رسول کعبہ قوسین کی منزلوں تک پہنچنے والا رسول، کبھی طٰہٰ اور کبھی یاسین کہلانے والا رسول، کہ جس کو مشیت سلام کرتی تھی وہ آ کر کے صبح در فاطمہ پہ سلام کرتا تھا۔ یہ وہی در تھا جس پہ وہ کہتا تھا سلام اے نبو اہل جزاکم ربکم بخیر الجزا۔ حاضروں ٹھہر کے رو لیں۔ اس مجلس کی کیفیت جیسا کہ آپ نے ابھی وقار بھائی سے بھی سنا ہے، ہمارے جتنے بھی مرضع کرام ان کی تاکید ہے کہ جو یہ عزائم فاطمیہ ہیں اس کو اسی شدت سے منانا چاہیے کہ جیسے آپ عاشورے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہاں جی کیونکہ وہ پہلا ظلم تھا۔ بس آپ تصور کریے جلدی کچھ واقعات کہ یہ وہ دروازہ جس پہ رسول سلام کیا کرتے تھے، اور رسول کے وفات کے صرف چند دن کے بعد آج وہی امت جو فضائل سنتی رہتی تھی وہ اس طریقے سے لکڑیاں لے کر کے آئی کہ ہم اس گھر میں آگ لگا دیں۔ ہاں یہ وہ دروازہ کہ جس میں مولا کائنات بھی ہیں۔ پہلے جب مولا کائنات کے پاس یہ فرمان آیا کہ آ کر کے بیعت کر لیجئے تو مولا کائنات نے کہا کہ جا کر کے کہہ دو کہ علی تمہاری بیعت نہیں کریں گے۔ بس علی جو ہے وہ اپنے کاموں میں مصروف ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، قرآن کو جمع کرنے میں مصروف ہیں۔ اب یہ بات دربار تک گئی تو وہاں سے حکم یہ ہوا کہ علی کی بیعت تو ضرور لینی ہے، اور علی کی بیعت لینے کا طریقہ یہ ہے، ان لوگوں کو یہ خیال ہوا لعنت ہو، ان کے یہ خیال ہوا کہ اگر ہم جا کر کے معاذ اللہ مولا علی کو ڈرائیں گے تو وہ ہماری بیعت قبول کر لیں گے، اور
ये जो इरादा आपको तारीख में मिलता है ये उसी हिम्मत की बिना पे थी, लेकिन ये हिम्मत भी उनको नहीं मिल सकती थी। उनको ये हिम्मत इसलिए हुई क्योंकि उनकी पेश नजर रसूल इस्लाम की हदीस थी कि रसूल इस्लाम ने ये फरमाया था कि या अली, मेरे बाद तुम्हारे पास कोई भी जुल्म हो जाए लेकिन तुम तलवार ना उठाना। तभी ये इतनी हिम्मत हुई थी कि आकर के और ज़हरा के दरवाजे पे आग को लेकर के पहुंचे। हाँ, ये शामे गरीबा में जो क़याम हुसैनी में आग लगाई गई, ये कोई नई चीज न थी, ये कोई नया जुल्म न था। इस जुल्म की अहले बैत पे शुरुआत तो रसूल की वफात के चंद दिनों बाद ही हो गई थी। लकड़ियां लेकर के आए, एक मर्तबा आवाज दी, अली को बाहर निकालो वरना हम इस घर में आग लगा देंगे। अरे शहजादी आगे बढ़ी, दरवाजे को पकड़ा, कहा अरे तुम जानते नहीं हो मैं रसूल की बेटी फातिमा, अरे इस घर में रसूल के शहजादे हसनैन मौजूद है, तुम इस घर को आग लगा दोगे? कहा हम हरगिज़ आग लगा देंगे। एक मर्तबा आग को रोशन किया, जनाब सैयदा ने दरवाजे को पकड़ा। एक मलऊन ने वो जुल्म किया कि बीबी दरवाजे और दीवार के दरमियान आवाज दे रही थी, पिज्जा मदद के लिए आओ, मोहसिन शहीद। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। हाँ जी, ठहर के रो लीजिए, 10 से 15 मिनट की ज़हमत आपकी है। खुदा आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफा करे, खुदा आपके वालिदैन पर रहमत नाज़िल करे, जिनके वालिदैन हयात है उनको तूल उम्र अता करे। हाँ अजीज़ों, किसके जुल्म का जिक्र किया जाए, बड़ा मज़लूम घराना है। हाँ अजीज़ों, उसके बाद से ये हाल हो गया कि तारीख को मिलता है कि जनाब फिज़्ज़ा आई और जनाब फिज़्ज़ा ये कहती थी कि मौलाए कायनात अब जब जाते हैं तो उनको कोई सलाम नहीं करता। ज़हन में है, वो पता है कि ये वो घर है कि जिसके दर पर रोज सुबह आकर के रसूल सलाम करते थे। आज वही अली है कि आकर के जनाब फातिमा पूछती हैं, जनाब फातिमा पूछती हैं कि या अली, क्या लोग आपको सलाम नहीं करते? मौला कहते हैं सलाम तो दूर की बात है, अरे अब अली जब सलाम करते हैं तो वो पलट करके जवाब देते। हाँ किस मुश्किलों से ये दिन बीबी ने बिताए, ये बाद वफात रसूल किस तरह से आप सुनते रहते हैं। अजीजों, आपने सुन लिया, बस सिर्फ आपके तसव्वुरात को जगाना है। बार बार की आपकी सुनी हुई बातें हैं, आराम से जाके पढ़ के निकल जाते हैं। हम लोग गिरिया करते हैं, मेडिकल का पहलू भी सामने आ जाता है, लेकिन आप कभी तसव्वुर करिए, अगर फ्रैक्चर यानी अगर किसी की कोई हड्डी कहीं की भी जिस्म की टूट जाती है तो जो पहला इलाज ये बताया जाता है कि उसको रेस्ट करा दिया जाए, उस हिस्से को मूवमेंट न किया जाए। मगर हाय रे मेरी शहजादी, 4 पसलियां जख्मी है, एक कलाई जख्मी है। जो सांस अंदर जाती थी आवाज देती थी बाबा, बड़ी अजियत है। जब सांस बाहर जाती थी दोबारा से पसली। मैंने किसी जाकिर से सुना था, मैंने सुना कि किसी ने पूछा आलिम से कि हमने पढ़ा है कि जनाब सैयदा किसी करवट लेट नहीं पाती थी, दाहिने पहलू या बाएं पहलू लेट नहीं पाती थी। तो आलिम कहते थे कि अरे बाद वफात रसूल और जब ये शहादत जनाब मुस्लिम हुई उसके बाद से जनाब फातिमा एक करवट तो क्या सिर्फ एक रुख पर लेट सकती थी, क्योंकि जैसे ही हिलती थी वैसे ही दर्द की शिद्दत। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। हाँ दादारो ये दिन गुजरते रहे और बीवी का मामूल क्या था? बीवी के पास सिर्फ एक काम था, अपने बाबा पर गिरिया करते रहना। हाँ जी, तो अपने बाबा पर रोते रहना। मगर हाँ, ये बाबा पर रोना भी मदीने के कुछ लोगों को नागवार गुजरा। मौला अली के पास आए, कहा या अली आप बीवी से ये कह दीजिए कि या तो शब की तारीकी में रोया करे या कहीं दूर किसी जगह जाकर के रोया करे, हमारे कामों में खलल पड़ता है। अरे मैं कहूँगा बीबी अभी इतनी खैरियत तो है, अरे अभी मदीना है, अभी कम से कम लोग ये कहने के लिए आए हैं कि ये कहीं और जाकर गिरिया कर ले। मगर हाँ, वो शाम का जिंदान, वो 4 बरस की बच्ची जब गिरिया करती थी, शिम्र
ताजियाने लेकर के आगे जज़ाकुम रब्बकुम व खैरल जज़ा। हाज़ा दारू। मौला अली सुबह आपका हाथ पकड़ते थे, बीबी को सहारा दे करके ले जाते थे। जन्नतुल बकी में अपने बाबा की कब्र के पास एक दरख्त था जिसके नीचे आपको बिठा दिया करते थे। बीबी गिरिया करती रहती थी। जब उन लोगों ने ये देखा तो कुछ जालिमों को ये ख्याल हुआ कि अगर इस दरख्त को काट दिया जाए। हाज़िरों, अब आप सोचिए, आज जब आप ज़ियारतों पे जाते हैं, जितने भी आए मासूमीन हैं, माशाअल्लाह से मौला उन रोज़ों की हिफाजत फरमाए। हर जगह पे आपको एक से एक इंतजाम मिलता है। किसी भी रोज़े पे जाएं, रोशनी का एहतमाम, रहने का एहतमाम, पानी का एहतमाम, मगर वो रसूल की पारहे जिगर, आपकी कब्र का निशान। तो ये कोई नया जुल्म नहीं जो जन्नतुल बकी को ढहा दिया गया, ये उन्हीं के तो वारिस है जिन्होंने उस वक्त उस दरख्त को काट दिया था जिसके नीचे सैयदा अपने बाबा पर गिरिया करते। जज़ाकुम रब्बकुम व खैरल जज़ा। आज़ादारों, बस मैंने अपनी बात को तमाम किया और आखिर में वो रात आ गई कि अब जनाब सकी तरह जो आज की रात है, जनाब फातिमा की ज़िंदगी की आखिरी रात, जनाब फातिमा की ज़िंदगी की आखिरी रात। एक मर्तबा मौला अली को बुलाया, तारीखों में ये वाक़या है, कुछ तारीखों में मिलता है। मौला अली को बुलाया, कहा क्या बात है शहजादी? कहा या अली, आज बाबा की बहुत याद आ रही है, जरा बाबा का हमामा मंगवा दीजिए। एक मर्तबा बाबा का हमामा मंगवाया गया, कहा बाबा का वो पैरहन मंगवा दीजिए। जब आपने जब गुस्ल दिया था उसे तो बाबा ने जो पैरहन पहन रखा था, लीजिए ये पैरहन आया। शहजादी ने अपनी आंखों से लगाया, बेटी ने बाप पर गिरिया करना शुरू किया। अरे वो शाम का बाजार याद आया, वो दरबार याद आया जब एक 4 बरस की बच्ची बाबा यजीद मेरा इम्तिहान ले रहा है, जरा मेरी आगोश में आ जाइए। वाह हुसैना कह के गिरिया कर रही है। जज़ाकुम रब्बकुम व खैरल जज़ा। हाज़िरों, बस एक मर्तबा जनाब सैयदा के पास ये तबरुकात आए। एक मर्तबा कहा या अली, कुछ वसीयतें जनाब सैयदा ने की। कहा या अली, मैं चाहती हूँ कि मेरा जो जनाजा हो वो शब की तारीकी में निकाला जाए और उसके बाद हाँ ये मेरे नौजवान अपने जहन में ज़रूर रखें और अपनी माँ को याद रखें। हाँ देखिए क्या वसीयत कर रही हैं। कहती हैं और या अली, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिसने भी फातिमा को अजियत पहुंचाई है वो हरगिज़ फातिमा के जनाजे में शामिल ना हो। लीजिए, फातिमा इस दुनिया से चली गई और गुस्ल का एहतमाम हो गया। मौलाए कायनात चीख मार के रोए, अरे कभी तुमके रसूल कभी अपने जख्म का जिक्र ना किया, जनाजे को तैयार किया, हसनैन को आवाज दी, हसन आगे बढ़े, ज़ैनब आगे बढ़ी, अम्मा को विदा किया, हुसैन पीछे खड़े हैं। अरे मेरी वालिदा, आप बकरे मरियम है, हुसैन को वैसे बुलाइए। एक मर्तबा बंदे का बन खुले, अरे हुसैन मेरी आगोश में आ जाओ। ये बात उस वक्त भी आएगी जब तुम घोड़े की जीन पे होगे, मुनादी निदा दे रहा होगा, शिब्र खंजर लेके बढ़ रहा होगा, तुम आगोश मादर में होगे, माँ के पहलू। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।